resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. Hello friends, I Shreyans Kothari welcome you all to the world of opportunities. Yes, you heard me right. World of opportunities. Yes, we are here with the book that is known as Quantitative Aptitude. Friends, this is the Quantitative Aptitude by S. Chand publication by R.S. Agarwal. You know it well. Your maybe your uncle, your father, your more than like a person more than that. Everybody knows this book, and now this is here with the new innovations we have. Let's see what is the innovation. Let's see why we are here in front of you all. Let's see. This book, man, the name of the book is Quantitative Aptitude, and this is for a competitive examination, fully solved as per new examination pattern. Yes, it is. So, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, कैसे आगे बढ़ें, क्या करना है इस बुक को लेके, वो सारी चीजें हम लेके आए हैं इस छोटे से वीडियो में. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस बुक के कवर पेज पे लिखा मिलेगा that what all exams we do cover. So we have it is an ideal book for bank PO, SBI, IBPS, RBI exams. These all are banks exam. Now MBA, Maths, CMAT, GMAT, CATS, IIFT, IGNOU, all the management exams. Then we have got SSC combined preliminary exam, hotel management, sub-inspector of police, CBI, CPO, UPSC, CSAT. Then we have railway recruitment boards, and finally campus recruitment test. So it covers all the competition exam. Wherever there is quantitative aptitude, here is the book for you. So let's learn something about this book. Right, here we are. First thing first, what is the content of the book? What is in this book? The book is like arithmetical ability and there's data interpretation. The book is divided into two sections. Why should I go for this book? I will tell you, just wait. सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन से टॉपिक्स हैं. So ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट आपके पास में है और आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई पोर्शन नहीं छोड़ा गया है. Yes, you heard me right. कोई पोर्शन छोड़ा नहीं गया है. अरिथमेटिक की बात करें, नंबर सिस्टम, HCF, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, एवरेज, नंबर्स, एज, सर्ज, लोगैरिथम से लेकर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, पार्टनरशिप, चेन रूल, पाइप्स, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, even alligation mixture, simple interest, compound interest, area, volume, everything is there. So you name a topic and it is there. It covers advanced maths, it covers general maths, it covers each and every exam for you. So what are you waiting for? Just go for it. Like data interpretation, right? Data interpretation is also a very important and crucial portion which comes in exam. And yes, it has that also with the differentiation of different charts, and it has all the charts separately. Very lucrative, very easy to understand form for you all. That is tabulation, bar graph, pie chart and line graph. Now, ये तो मैंने बता दिया आपको कि कंटेंट क्या है, इस बुक में क्या है, किसके लिए पढ़ी जाएगी. बट मैं क्या करूं, कैसे पढ़ूं, कैसे शुरू करूं, क्या करूं मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बढ़ाने के लिए. See, I'll tell you 2 or 4 things जो आपको करनी चाहिए. आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है. मैं बात करता हूं ऐसे दोनों लोगों की, और इवन ऐसे कुछ लोग होंगे जो मीडियम लेवल के होंगे, जो इस तरफ एक्सट्रीम पे नहीं है, जो इस तरफ एक्सट्रीम पे नहीं है. हम बात करते हैं एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. दिस सी फ्रेंड्स, इट इज व्हाट मैथ्स इज मेजरली अबाउट कैलकुलेशन. I would not say कि it is all about calculation, but majorly about calculation. What I strongly suggest is कि आप अगर competition exam की तैयारी करना चाह रहे हैं, see what is competition. आपको एक कॉलेज के अंदर you know it very well कि आपको एक particular score करना होता है, and everybody can score top, right? For example, अगर मान लो 100 marks का पेपर है, so if all gets 100 out of 100, all will get the certificate और द डिग्री और द डिप्लोमा. बट कंपटीशन एग्जाम नहीं होता है. लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर कट ऑफ है. वो कट ऑफ क्लियर हुई, यू आर इन, नहीं हुई, यू आर आउट. दैट मीन्स व्हाट, आपको कंपीट करना है. और सबसे पहला कंपटीशन होता है आपका टाइम के साथ. टाइम इज वेरी क्रूशियल, राइट? इन एनी एग्जामिनेशन टाइम बहुत जरूरी है.
सो टाइम को किल करने के लिए सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन को बढ़ाइए, कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाइए, दिन में बहुत सारी कैलकुलेशन करिए, बहुत सारी कैलकुलेशन, पैशन हो जाना चाहिए। कहीं कोई नंबर दिख रहा है ना, ऐड देम। कहीं कोई 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बोले, फटाफट से उन सब नंबर्स को ऐड कर लो, 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। आप कार में जा रहे हो, सामने एक गाड़ी जा रही है, 4 डिजिट का नंबर देख रहा है, फर्स्ट 2 को सेकंड 2 से मल्टीप्लाई कर लो। किसी तरीके से कैलकुलेशन बनाओ, डे इन डे आउट दिमाग में कैलकुलेशन घूमनी चाहिए। एंड यू आर देयर जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं। मैं ले जाना चाह रहा हूं कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो। कैलकुलेशन फास्ट होगी, हम सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे, हम और दूसरी चीजें कर पाएंगे। इवन आप कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन उठाइए, जब आप क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे, फाइनली तो कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे सब टेबल याद नहीं होती। आई टोटली एग्री कि आपको टेबल याद नहीं होती, लेकिन अगर आप रिगरस प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, तो डेफिनेटली आपको याद होगी। हम क्या है, हमारे थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाते। हमें 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार कर लिया, अब नहीं हो रहा है, ऐसा हम करके छोड़ देते हैं। अगर कंपटीशन एग्जाम करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को करना है, तो बहुत सबसे पहले कैलकुलेशन को अच्छा करिए। देखिए, टेबल अगर आपको याद करनी है ना, तो अभी रिसेंटली व्हाट आई हैव हर्ड अ न्यू टर्म फ्रॉम माय डॉटर। मेरी डॉटर है और वो 4th क्लास में है, एंड आई हैव हर्ड समथिंग डॉजिंग टेबल। अभी हमारे टाइम तो डॉजिंग टेबल जैसा कुछ था नहीं, बट दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड। सी, टेबल को याद करने के लिए कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूं आपको, पर उससे पहले ये समझ लें हम कि हमें क्या करना है। सी, एटलीस्ट मुझे 50 तक की टेबल्स याद हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट मुझे 50 तक के स्क्वायर्स याद हों, एटलीस्ट मुझे 30 तक के क्यूब्स याद हों। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे याद करनी है। अगर मैं याद करूं तो बहुत अच्छा, अगर मैं नहीं याद करूंगा तो मुश्किल है। यानी कंपटीशन के लिए मुझे ये तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, अगर मुझे कॉम्पीट करना है, अगर मुझे किसी को पीछे छोड़ना है, राइट। अभी हम बात करते हैं टेबल की। सो ये जो डॉजिंग टेबल का कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं था, बट इसको हम कैसे अप्लाई करें, क्या चीज है ये डॉजिंग टेबल, कभी सुना नहीं हमने इसके बारे में। लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, हमें 1 से लेके 12 तक की टेबल तो बहुत अच्छे से याद रहती है ना। अभी 12 के बाद क्या करना रहा, 12 के बाद की टेबल को कैसे समझना रहा। डू वन थिंग, एक दिन पर सी, अ टेबल अ डे, एक कॉन्सेप्ट में लेके आया हूं, अ टेबल अ डे। सिंपल काम करेंगे, मैं आज केवल 13 की टेबल को याद करूंगा। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार मैं 13 की टेबल को याद करूंगा। एंड उसके साथ साथ एक सिंपल कॉन्सेप्ट, टेबल 2 वे डायरेक्शन में याद करूंगा। यस, 2 वे डायरेक्शन का मतलब है 13 into 1, 13 2 जा, 13 3 जा, 13 4 जा, 13 5 जा, वापस उल्टा 13 10 जा, 13 9 जा, 13 8 जा, 13 7 जा। मैं जैसे ही टेबल याद करूंगा, मैं सीधी और उल्टी दोनों करूंगा। आज का पूरा दिन मैं टेबल में लगा दूंगा, अच्छे से याद करूंगा 13 की पूरी टेबल। यस, आई एम देयर। तो हमने 2 काम किए, 13 की टेबल याद की और हमने रिवर्स टेबल भी याद करी, यानी रिवर्स डायरेक्शन में, यानी हमने 2 तरफा से याद की। 2 तरफा से याद करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज हमारा दिमाग कहता है अगर 13 7 जा करना है तो पहले 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा ऐसे आना पड़ता है। लेकिन अगर हमने 2 डायरेक्शन में हमने याद किया तो आपको एक तो बेनिफिट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ साथ नाउ आज हमने टेबल याद कर लिया, कल क्या करें, सुन लीजिए मेरी बात को। हमें अब जो करना है वो बहुत जरूरी है। आप एक कोई भी बड़ा नंबर लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 98734801 फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी नंबर लिखा, इट इज लाइक 9 डिजिट नंबर, मैंने इसको 7 लिख दिया, व्हाटएवर। सो मैंने एक नंबर लिख लिया। आपको ये एक नंबर नहीं लिखना है, आपका एक रजिस्टर यानी कि बड़ा वाला लॉन्ग नोटबुक जो होता है, उसका एक साइड में ऐसा बहुत सारा नंबर लिखना है, लोड्स ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल 10 20 30 40 50 जितना भी आपका लाइन्स है, उतने सारे नंबर से आपको केवल 13 से मल्टीप्लाई करना है। अगर दम है तो आपको 2 पेज में ऐसा करना है। यस, यू हर्ड मी राइट, 2 पेजेस में बॉस, एक बार करके देखिए। नाउ इन दिस केस व्हाट आर वी डूइंग, 13 into 9, 13 into 1, 13 0, 13 8, 13 4, 33, जो भी आंसर होगा विद कैरी आप लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। और इससे अच्छा एक काम कर सकते हैं, आप 2 फ्रेंड्स बैठिए, आप अपने फ्रेंड की कॉपी लीजिए, अपनी कॉपी अपने फ्रेंड को दीजिए, और दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाए ऐसी एक तकरार, हो जाए लड़ाई, हो जाए आर पार की लड़ाई।
हो जाए एक एक पिज्जा के लिए, एक एक कॉफी के लिए, एक एक समोसे के लिए, व्हाटएवर यू लाइक, और फिर आप उसकी कॉपी में अच्छे से अच्छे लिखिए, आप उसकी कॉपी में लिखिए और वो आपकी कॉपी में लिखेगा, एंड देन योर काउंटडाउन स्टार्ट्स। आप 13 की टेबल को जब इतनी बार करेंगे, 2 पेज में कर देंगे, बॉस आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? नाउ यू नीड टू गिव योर कॉपी टू योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड्स कॉपी यू टेक, एंड करेक्शन करने के लिए, चेक करने के लिए, डू द कैलकुलेशन अगेन। सो 2 पेज और 2 पेज, 4 पेज हो गए। अपना दिमाग चलाया, कैलकुलेटर का यूज नहीं किया। आज 13 को किया, कल 14 को, 15 को, 16 को, 17 को। जब 17 तक पहुंच जाओ तो एक दिन ऐसा ले लो रैंडम, 13, 14, 15, 16, 17, एनीथिंग का कैलकुलेशन। सो दिस इज वन ऑफ द वेज जहां पे आप तैयारी कर सकते हैं। आई रिमेंबर 5 ईयर्स 7 ईयर्स बैक, मेरा एक स्टूडेंट था, वो जहां जगह दिखती थी एक बहुत बड़ा नंबर लिखता था और पूरे को 9 से, कभी 20 से, कभी 27 से मल्टीप्लाई करता था। और वहां से मैंने सीखा, समझा कि बॉस, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स जो आप कर सकते हैं आपकी टेबल को बढ़ाने के लिए, याद रखने के लिए, और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। आई नो स्टूडेंट्स जहां पे दे आर ऑलमोस्ट लाइक 65 की, 67 का भी मल्टीप्लिकेशन 67 की टेबल से करते हैं। यस, 67 की टेबल से। मैं नहीं कह रहा कि 67 तक जाओ, 50 तक जाओ, और मैं 50 तक बोलूंगा, आप 30 तक तो जाओ, 40 तक तो जाओ, कहीं ना कहीं तो जाओ। दिस इज द वन ऑफ द वेज जहां कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा, आप एक कैलकुलेशन और कर सकते हैं। सी, आप पेज निर्धारित करने के साथ साथ टाइम निर्धारित कीजिए। एवरी सिंगल डे मुझे 45 मिनट्स कैलकुलेशन पे लगाना है, तभी जाके मेरा मैथ सुधरेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, इवन जिनका बहुत स्लो मैथ्स है, जिनका दिमाग नहीं चल रहा है, मैथ नहीं करना चाह रहा, टेबल नहीं याद करना चाह रहा, आई टेल यू, ही और शी कैन ऑल्सो डू दिस। आपने सुना होगा ना, एनीबडी कैन डांस ABCD। आई टेल यू, एनीबडी कैन कैलकुलेट, इफ वो मेरे मेथड को फॉलो करता है तो। नाउ सेकंड थिंग, आप क्या करिए, बहुत सिंपल सा काम, आप है ना, एक बहुत सारे नंबर्स लिख दीजिए, 4 डिजिट्स के, ओनली 4 डिजिट्स के बहुत सारे नंबर लिख दीजिए, एंड ऐड देम, ऐड ऑल ऑफ देम, ऐड करिए। इससे क्या, टेबुलेशन वाले जो ग्राफ आते हैं वो फटाफट हो जाते हैं, बेसिक कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, ऐड कर लेते हैं हम लोग, और कैरी कितना लगाना है, कितना याद रखना है, ईच एंड एवरीथिंग इज डन। सो ये बहुत सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप तैयारी करने में अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई टेल यू, बहुत 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 बड़ा आनंद आ जाएगा अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि बेसिक जो कोर है ना, वो कैलकुलेशन का है। और इस कैलकुलेशन के बाद जब आप इस बुक को करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील दैट कि यस, आई हैव डन समथिंग। आफ्टर दैट दिस बुक इज देयर। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक एक चीज को समझाता हूं। सबसे पहले, सी, फाइंड फर्स्ट थिंग which chapters come under your competition exam you aspire for. Some of you, अगर आप इस बुक को लेके गए कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, कुछ आप में से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ आप में से बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, अलग अलग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। सो आपको पता होना चाहिए इस बुक में से मेरे काम का कौन सा है। आई नो every chapter in this book is very very important, but still it is important for all of you. For some of you, some chapters are important. For some of you, some chapters are important. कंटेंट पूरा है, उसमें से आपको कौन सा लेना है, पहले तो ये एक बार मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद गो वन बाय वन, गो टू द चैप्टर्स वन बाय वन। एक चैप्टर को उठाइए, उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उस चैप्टर को एक भी क्वेश्चन ना रह पाए, आपको वहां तक करना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सी, this book has covered all the different patterns. Say for example, you take profit and loss. This book covers every aspect of profit and loss. Whether you take any examination, all the patterns are covered from zero level to the last level. And the most important part is, you know the pattern. There are questions written with the examination in which the previous year came. So, आप उस चैप्टर को उठाइए, उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ना छोड़िए, एंड डू ऑल क्वेश्चंस वन बाय वन। एंड आई टेल यू द बेस्ट ट्रिक यू कैन डू, ट्राई टू डू दिस। हो सकता है एक बार आपको बड़ा पेनिंग लगेगा, बट अगर आपने कर लिया ना, आपने किला जीत लिया। आई टेल यू, आपने किला जीत लिया। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, डू इट विद टाइमर। टाइमर कैसे लगाएंगे एक एक क्वेश्चन के लिए? सी,
द सिंपल कॉन्सेप्ट इज, आप एक क्वेश्चन को उठाइए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके मोबाइल में एक स्टॉप वॉच का ऑप्शन होता है, इट्स ऐप स्टॉप वॉच लगाइए, 0 से उसे चलने दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल इट टेक्स 30 सेकेंड्स और 1 मिनट और 5 मिनट और व्हाटएवर। आपको पता चल गया कि इस तरह के क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम लगता है, स्टॉप वॉच लगाइए 2 बार 3 बार 4 बार। फिर उस चैप्टर के बाकी वाले क्वेश्चंस के लिए आप काउंटडाउन टाइमर लगा सकते हैं, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको एग्जाम के लिए पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको कितना टाइम लगता है, ये एग्जाम में जज कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग दैट मींस बॉस यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। How many seconds do you take to complete a question, that you must know. So my saying is again and again, I would strongly suggest that आप प्लीज हर क्वेश्चन को टाइमर के साथ करेंगे। Now, as it is written as the most comprehensive book, दोस्तों ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इसमें रह गया है, मतलब मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोस्ट अपडेटेड बुक is in your hand if you are watching this video. Why so? Because it covers all the aspects. I guess one of the oldest in the country and most updated in the country. ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल मिलेगा, राइट? सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिच इन कंटेंट, बॉस कंटेंट जो बनाया गया है, इट्स एस चांद पब्लिकेशन का एक बहुत बड़ा टीम इस कंटेंट पे काम करता है। आर.एस. अग्रवाल सर ने इस किताब को लिखा है, उनके देखरेख में ये जो टीम है बहुत शानदार तैयारी करवाती है। उसके साथ साथ ऑल द क्वेश्चंस आर विद आंसर्स एंड सॉल्यूशन। तो द बेस्ट पार्ट इज, आप पहले क्वेश्चन करिए, अपना मेथड लगाइए, सॉल्यूशन करिए, मतलब उसका आंसर निकालिए, आंसर पीरियड चेक कर लीजिए, हो गया तो डन। आप पीछे जो सॉल्यूशन दे रखा है वो भी चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएगी, बट कभी कभी ऐसा होगा कि आपने लॉन्ग मेथड लिया है और बुक में बहुत सिंपल सा शॉर्ट मेथड दे रखा है जो आपको देखना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट दैट गो विद द क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन को करने के बाद go with the answer and then solution. This is the key, you should go all the time. आपको ये सारा काम करना ही चाहिए। Now what else? Loads of examples, load of question, useful formulas at the beginning. जब आप चैप्टर शुरू करते हैं उसके स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूलाज दे रखे हैं, ऑल द फॉर्मूलाज जो हमें याद रखने हैं, जिससे ये चैप्टर किया जाएगा। बेसिक जिसको हम कहते हैं ना क्रिस्प कॉन्सेप्ट, क्रिस्प थ्योरी, वो आपको हर चैप्टर की दे रखी है। अलग से बहुत थ्योरी का कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट एवरीथिंग इज गिवन, राइट? एंड डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, दिस टाइम आई हैव सीन ईच एंड एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन, एंड आई टेल यू बहुत सारे एग्जाम में स्ट्रेट अवे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस आते हैं। सो डेटा सफिशिएंसी को कैसे करना है, क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें इस बुक में दे रखी हैं। एंड एज पर एग्जाम पैटर्न, एज आई टोल्ड यू, जब आप क्वेश्चन को उठाएंगे उसी में पैटर्न दे रखा होगा। आप क्वेश्चन को उठाएंगे, नीचे लिखा होगा, एंड आई टेल यू जितनी भी सारी एक्सरसाइज हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, से फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस आर देयर, देन मोर देन 80 क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड दैट ईयर इज आल्सो मेंशन्ड देयर। सो यू नो कि कौन से एग्जाम के टाइम कौन सा लेवल रहता था। इवन यू वोंट बिलीव, लेटेस्ट ट्रेंड 2021 के भी क्वेश्चंस इसमें आ रखे हैं। Yes, you heard me right. So latest trend के साथ this book is most updated, right? Now we say this is the book for beginners and experts. अगर आप experts हैं तो बहुत अच्छा question bank है, अगर आप beginner हैं तो 0 से start कर सकते हैं, and it has all the answers and solution. So आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। Quantitative Aptitude जिस भी एग्जाम में आता है, बुक लीजिए, solve करिए, मजा आ जाएगा। Now what is new? This is the new part. This is the most innovative part जो एक publication आपके लिए कर सकता है। And recently S. Chand has started doing this. What? Yes, you heard me right. Includes chapter-wise video content to boost your preparation. आप नहीं सोच सकते आपको क्या ऑफरिंग की जा रही है। You can't even imagine that एक बुक मिल रही है और बुक के साथ एक ट्यूटर, एक टीचर आपको फ्री मिल रहा है। यस, यू हर्ड मी राइट। एक टीचर आपके साथ हमेशा रहेगा और वो बताएगा कि बॉस इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। लेटेस्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन, इजी एंड सिंपल वे ऑफ प्रेजेंटेशन, बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स, एवरीथिंग। 40 videos in this book. Yes, 40 videos, 2000 plus solved examples,
एंड 10,000 प्लस क्वेश्चंस। करना क्या है, आपको एक QR कोड स्कैन करना है। यस, ईच एंड एवरी चैप्टर हैज अ QR कोड, राइट? और वो जो QR कोड है वो स्कैन करिएगा एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू व्हाट, द ट्यूटर। सीधा ट्यूटर के पास जाएगा और आपको ट्यूटर बताएगा कि बॉस इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मेथड। आपने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद वो एक वीडियो पे लेके जाएगा और उस वीडियो के ऊपर आपको एक प्रॉपर उस पूरे चैप्टर का वीडियो मिलेगा विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूलाज के बाद सम ऑफ द क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व करना है, क्या आप गलतियां कर सकते हैं, वो सारी चीजें ट्यूटर ने समझा रखी है। स्कैन योर देयर, कंसेप्ट कवर, क्वेश्चंस हैव डन, शॉर्ट ट्रिक्स आल्सो, वो टीचर आपको बताएंगे कि बॉस शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ट्यूटर आपके साथ है, उनको रिवाइंड करो, उनको फॉरवर्ड करो, उनको नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ो, 3 बार समझो, लेकिन आपका ट्यूटर आपके साथ है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? यू हैव ऑल द चैप्टर्स विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस। और इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? डू ऑल द क्वेश्चन रिमेनिंग। सो जो कुछ क्वेश्चंस कर दिए हैं वो कर दिए हैं, बाकी आप स्वयं करें, खुद भी करें, सो दैट यू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट टॉपिक, राइट? नाउ व्हाट एल्स? यस, यू आर राइट, बैंग ऑन। ये बुक में और क्या चाहिए आपको? जस्ट नाम बताइए और ये है यहां पे ऑनलाइन टेस्ट का पूरा ऑफर। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपको इस बुक के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ नहीं, एंड आपको एक ऑनलाइन टेस्ट का एक कोड मिलेगा। उस रेफरल कोड से आप उस पे जाएंगे एंड यू टेक ऑल द एग्जामिनेशन। आपको कौन सा एग्जामिनेशन देना है उसके लिए पूरा एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इस बुक के साथ, विदाउट पेइंग यू एक्स्ट्रा पेनी। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। यस, यू हर्ड मी राइट, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। सो देर किस बात की है बॉस? जल्दी से किताब उठाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हां, इस एस चांद एकेडमी का एक चैनल है यूट्यूब पे, जस्ट गो देयर, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल so that you get the latest update with the video also. So here we are, totally mesmerizing किताब के साथ, जहां पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, each and everything is told without any hustle। कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। स्कैन किया मतलब कुछ टाइप ही नहीं करना है, स्कैन किया एंड यू आर देयर। सो बाय फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट फॉर एनी एग्जाम यू गिव। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।